Good afternoon, all of you. Now we start the fourth lesson, environmental management, standards 10 standard. Now see here, environmental management. What is the use of environmental management? If you not do the management of environment, then you cannot survive in the society, because those things we get from the nature, that is at the end they are मीन्स फिनिश. मतलब कोई भी चीज़ अपने सोसाइटी में होने दो, वो एक ना एक बार फिनिश होने वाले. If there is a sources, natural sources are there, they also finish at a one point. Now that's why you have to do the management of environment. Now see here, in this chapter we are going to learn first of all ecosystem, then there is environmental conservation, then biodiversity hotspot, environmental and ecosystem relationship, and environmental management. Now see here, ecosystem. What is the ecosystem is there? In ecosystem is formed by the biotic and abiotic component. मतलब इकोसिस्टम ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से क्या होती है, फॉर्म होती है. नाउ एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, और उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होता है. मीन देयर इज अ फूड चेन इज देयर, दैट इज ऑल्सो इकोसिस्टम. मीन्स दैट grasshoppers depend on that grass, then frog is depend on grasshopper, then snake is depend on frog, then the eagle is depend on snake. Then when the eagle is die, then that eagle is decomposed in the earth. Then what happen, that all the minerals and vitamins are there, that grass are absorbed. Means this one is a chain is there, and this is a ecosystem is there. Now see here, producer like plants are important. Means producer like plants are important because plants produce their food, means prepare their food by their own, because they have photosynthesis. In the plant there is a chloroplast is there. Plants में क्या होता है, chloroplast होता है. That's why they can prepare their own food. Now herbivores like deer, goat, then sheep, cattle, horse, camel, it is feeding on the producer. Means जो गाय, बैल, बाद में ये कैमल्स, हॉर्स होता है, वो क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर को क्या करते हैं, खाते हैं. Understand? Now like that predator like a lion and tiger, which one prevent overpopulation of herbivores. मतलब herbivores जो है, lion, ये काऊ है, काऊ है, कैमल है, हॉर्स है, इन सबको कौन खाता है, डियर को. ये प्रेडिटर मतलब लायन और टाइगर्स खाते हैं. मीन्स दे मैनेज दैट herbivores population. Now also equally important, a question may be arise in our mind that whether the caterpillars found in nature, organism present in the filthy place, termites, insect present in the dirt are really useful. Means these are useful for us? No, some organisms are so harmful for us and some organisms are useful for us. Now see here, there is a rock, rat is there in the farm. Then what happened, that rat is destroy all the crops. Understand? And there is a another one, insects are there, termites are there. Which one? Termites destroy that whole wood, फर्नीचर. मतलब जो देखो टर्माइट्स रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पूरे जो अपना फर्नीचर है ना घर का, वो पूरा फर्नीचर क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इम्पोर्टेंट थ्रू द आवर डर्टी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. अभी आपको मालूम है, जो ये डिकम्पोजर रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े, आप लोग कीड़े देख के क्या करते हो, शी कितना गंदा कीड़ा है, ऐसा बोलते हो ना. लेकिन दैट वर्म्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे डिकम्पोज दैट डेड बॉडीज ऑफ दैट एनिमल्स. मतलब जो भी मरे हुए एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी, डेड बॉडी क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. अगर वो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे. There is everywhere, there is a uncleanness is there, a dirty smell is there. That's why decomposer, those are cleaner of society, they are decomposer. Understand? It means that our existence is due to this factor present around us, hence we should care of this factor. इसलिए हमें वो factors का क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए.
नाउ हाँ, इकोसिस्टम बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब इकोसिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स और एक अबायोटिक कंपोनेंट। अभी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से देखो, फिजिकल फैक्टर्स। अभी अबायोटिक कंपोनेंट मतलब जो हमारे नेचर से मिलता है, फिजिकल फैक्टर लाइक एयर, सॉइल, देन वेपर्स, मिनरल, दैट इज अ सनलाइट, दिस इज अ अबायोटिक कंपोनेंट। एंड बायोटिक कंपोनेंट मीन्स दोज आर अलाइव, मतलब समझ में आ रहा है। अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग और जो जिंदा नहीं है वो, और बायोटिक मतलब दोज आर अलाइव मतलब जो जिंदा है। उसमें ऑटोट्रॉपिक्स आते हैं और हेटेरोट्रॉपिक्स आते हैं। और ऑटोट्रॉपिक्स में देखो प्रोड्यूसर है, बराबर, प्रोड्यूसर में भी क्या हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं प्रोड्यूसर, ग्रास है, देन ट्रीज आर देयर, देन देयर इज अ हेटेरोट्रॉपिक्स में क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में क्या होते हैं, दो तरफ के रहते हैं, कौन कौन से, कंज्यूमर और प्रेडेटर, आ रहा है ना समझ में। और बाद में डिकम्पोजर भी क्या होते हैं, फंगी इज ऑल्सो डिकम्पोजर इज देयर। नाउ मीन्स दिस ऑल थिंग्स आर द इकोसिस्टम, ये सब चीज़ों को मिला के क्या बनते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम मतलब द बोथ abiotic and biotic components are there, that is the meaning of ecosystem. Now paddy is cultivated on the large scale in the various state of South India. Paddy मतलब जो ये रहता ना, एक क्रॉप्स है, हाँ। पैडी फील्ड आर फ्रीक्वेंटली अटैक बाय द ग्रासोपर्स, मतलब इसके ऊपर कौन अटैक करता है, ग्रासोपर्स अटैक कर ले। सिमिलरली फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द मड ऑफ द पैडी फील्ड। और आपको मालूम है जो मड में है ना, सब ज़्यादा फ्रॉग्स भी रहते हैं टू फीड अपॉन द ग्रासोपर्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ग्रासोपर्स। एंड स्नेक आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, बिकॉज वाई द स्नेक्स आर प्रेजेंट, बिकॉज द फ्रॉग्स आर देयर, दैट्स वाई, मीन्स दैट स्नेक्स ईट द frog, then frog eat the grasshopper and grasshopper eat the insect from the soil, means this one is a chain of food chain is there, also present in their feed upon their favorite food frog. Now this one is a continuously going on, that's why ecosystem is cannot stop, इसलिए ecosystem कभी बंद नहीं होती है। Now relationship between the environment and ecosystem, अभी environment और ecosystem में क्या relation है। environment is a broad concept, environment ये क्या है, एक broad concept है, physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called the environment। मतलब एक तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से भी फिजिकल होने दो, केमिकल होने दो या बायोलॉजिकल, कौन से भी फैक्टर्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब कुछ अटैक करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब वो सब चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट इन्वायरमेंट इज अ कंडीशन इन सराउंडिंग, और शॉर्ट में बोला जाएगा तो इन्वायरमेंट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे आजू बाजू का सराउंडिंग। नाउ इट इंक्लूड मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। अभी आप बोलोगे सर बायोटिक मतलब हमें मालूम है एनिमल्स और प्लांट, अबायोटिक मतलब भी मालूम है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ये आर्टिफिशियल फैक्टर मीन्स विच वन इज प्रिपेयर्ड बाय द मैन, मीन्स कार्स, देन साइकिल, मोटरसाइकिल इज देयर, फैंस आर देयर, दिस ऑल थिंग्स आर इन artificial factor. There are two main types of environment, one is natural environment and other is artificial environment। मतलब दो ही environment है, कौन कौन से, natural environment और artificial environment। Natural environment consists of air, atmosphere, water, land and living organism। मतलब जो natural environment है, जो nature से हमें मिलता है, वो कौन कौन से natural environment, air, atmosphere, water and living organism, etc. Continuous interaction occur between the biotic और abiotic component, मतलब biotic और abiotic। अभी कैसे आपको मालूम है रिलेशन होता है, अभी abiotic मतलब air, बराबर ना, air, और कसं काय, एयर लिविंग है, एयर कैसे लिविंग रहेगा, बायोटिक मतलब एनिमल्स और प्लांट, अंडरस्टैंड, बायोटिक्स मतलब एनिमल्स एंड प्लांट। नाउ देयर इज अ एयर इज देयर, देन एयर ऑन द एयर who is depend, human beings are depend, means there is a relation in between the biotic or abiotic component, because that minerals are required for animals also,
That's why there is a relation between the biotic or abiotic component. Their interactions are very important. Artificial environment is also affecting the natural environment directly. मतलब artificial environment का भी क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर परिणाम होता है. बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर. मतलब इन्वायरमेंट में दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक फैक्टर. द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. और जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं. बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम. और जो बेसिक फंक्शन यूज करते हैं इसके स्टडी के लिए उसको ही क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम्स बोलते हैं. अंडरस्टैंड. इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, एनिमल, बायोटिक, अबायोटिक एंड आर्टिफिशियल फैक्टर. दिस ऑल थ्री थिंग्स आर कम इन द ecosystem. Environment consists of many ecosystem. We have studied some ecosystem in the earlier classes. A small pond is an ecosystem where the earth is largest ecosystem. मतलब small pond एक छोटा ecosystem है, तो earth ये क्या है, एक largest ecosystem है. Why the ecosystem is there? Because on the earth so many things are depend on each other. मतलब समझ में आ रहा है ना, अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है. इसलिए अर्थ को भी क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. इन द ब्रीफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग द डिफाइंड जोग्राफिकल एरियाज एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम. ना इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू द कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल cycles like a water cycle, carbon cycle, gaseous cycle like a nitrogen cycle, oxygen cycle etc. मतलब इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू द कंटिन्यूस ऑपरेशन. मतलब इन्वायरमेंटल बैलेंस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, साइकिल्स है. कौन कौन से साइकिल है, कार्बन साइकिल, देन ऑक्सीजन साइकिल इज देयर, देन नाइट्रोजन साइकिल इज देयर. दिस ऑल थिंग्स आर सो important for the continuous changes in the environment. Environment balance is also maintained due to the various food chain of ecosystem. और environmental बैलेंस भी किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम. नाउ ह्यूमन कंसिस्ट इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर. मतलब ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्टली विदाउट द नेचर. मतलब ह्यूमन बीइंग को अगर नेचर नहीं रहेगा तो उसके लाइफ में कुछ भी क्या नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है. Hence it is the basic responsibility of human being to take care of the nature. मतलब नेचर का टेक केयर करना ये हमारी क्या है, बेसिक ड्यूटी है. नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट बैलेंस. अभी देखो कितने झाड़ टूट गए बीच में, तो इसके कारण क्या होता है, बारिश कम हो जाती है और उसका परिणाम क्या हो जाता है, वी कैन नॉट गेट वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पज. और अभी कभी कभी क्या हो जाता है, और तूफान आ गया तो उसमें क्या हो जाता है, घर के जो शेल्टर है वो उड़ जाते हैं. क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि आजू बाजू में उसको ट्रीज रहते ही नहीं है ना प्रोटेक्ट करने के लिए. इसलिए अ स्मॉल पॉइंट, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. नाउ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब क्या. Now, when the some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it increase the imbalance between various factors of environment and ultimately affect the existence of biotic factor. मतलब आपको मालूम है जो environment में जो artificial फैक्टर्स होते हैं, कार, मोटरसाइकिल, ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट है वो क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं. मतलब पूरा गंदा कर देते हैं. और बाद में इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, नेचर के ऊपर तो होता ही है, लेकिन वो कौन लेता है अंदर, ह्यूमन बीइंग. मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर होता है ना. मतलब जो भी धुआं होता है, जो भी हार्मफुल गैसेज होते हैं, वो कौन इनलेट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई दे सफर फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. नाउ दिस ऑल थिंग्स मीन्स विच वन इन्वायरमेंटल इज पोल्यूटेड ना, दैट इफेक्ट इज फॉल ऑन द बायोटिक कंपोनेंट. मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर क्या होता है, उसका असर गिर जाता है. At the present, many environmental problems have been arise due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. अभी आपको मालूम है जो नेचुरल और जो आर्टिफिशियल फैक्टर. नेचुरल मतलब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज, देन फ्लड इज देयर, ड्रॉट इज देयर,
दिस इज ऑल्सो मतलब इसका हमारे जीवन पे वो क्या होता है, बहुत बुरा असर हो जाता है। नाउ आर्टिफिशियल फैक्टर्स में क्या होते हैं, कार्स, साइकिल नहीं, कार्स, बाइक, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरा एयर क्या कहते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। देन देयर इज एटॉमिक एनर्जी, मतलब एटॉमिक एनर्जी के इधर भी क्या हो जाता है, बहुत सारा फैक्टर्स उधर ही गिर जाते हैं, उसका हमारे बॉडी पे ऊपर क्या होता है, गलत असर पड़ता है। नाउ कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट पॉल्यूशन, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू द नेचुरल इवेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और उसको ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विच बी हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग। मतलब आपको मालूम है, अगर पानी के टेस्ट में चेंज हुआ तो आपको क्या हो जाता है, डायरिया वगैरह चेंज होता जाता है ना, मतलब वी सफ़र फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। मीन्स वी डिपेंड ऑन नेचर, मीन एनवायरमेंट। विदाउट एनवायरमेंट वी कैन नॉट सर्वाइव आवर सेल्फ, मतलब एनवायरमेंट के सिवा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। वेरियस रीजन लाइक पोल्यूशन, एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन मतलब बार बार क्या करना, फॉरेस्ट कट करना, एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब अनप्लान अर्बनाइजेशन, अभी आपको मालूम है अनप्लान अर्बनाइजेशन मतलब गाँव खेड़े में अभी भी जाओगे ना, लोग क्या करते हैं, खुले में ही क्या करते हैं, संडास को बैठते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, पूरा पोल्यूशन हो जाता है, और उधर का जो भी एरिया है वो क्या हो जाता है, डिसीजेस स्प्रेड हो जाता है। मतलब उधर आप लोग गए ना उधर से, तो भी आपको क्या हो जाएगा, तुरंत वो डिसीजेस का क्या हो जाएगा, अटैक कर लेंगे। Understand all of you? Pollution is a broad concept. Various type of pollution like air pollution, water pollution, and sound pollution like thermal, light pollution occurred around us. Ultimately, adverse effect of this on existence living organism. मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत ही खराब हो रहा है। We have studied their air pollution, water pollution and soil pollution in the detail in early classes. मतलब वाटर पोल्यूशन क्या है वो मालूम है आपको, सॉइल पोल्यूशन क्या है वो मालूम है। क्या है सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन मीन्स what is there is so much mud is means so much mud is go with that flood, मतलब फ्लड के साथ क्या हो जाती है, वो मड क्या हो जाती है, निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ देयर इज अ नेक्स्ट वन इज द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अभी क्यों इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का नीड है, देखो जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब है ना पब्लिक इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन का कुछ भी रूल्स क्या नहीं कर रही है, अप्लाई नहीं कर रही है। देयर शुड बी द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने आगे आके क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑब्जर्व बिकम वेरी इफेक्टिव। Public movement for this purpose value like a positive attitude and affection towards the environmental knowledge about it. It should be included among the children since their childhood, मतलब ये सब चाइल्डहुड से उनके क्या हो जाता है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नाउ दिस विल बी हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट। इसके कारण ही अभी देखो आपको पहली में से ही क्यों इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टडी है, क्योंकि आपको अपने इन्वायरमेंटल के बारे में क्या हो सके, प्यार हो सके, और यू डोंट थ्रो मीन्स यू डोंट अनक्लीन द इन्वायरमेंट, मतलब आपको अपना इन्वायरमेंट अनक्लीन नहीं रखना है। टुडे ऑल द developing and undeveloped countries have accepted the responsibility of environmental protection. Their efforts are in that direction.
they have defined that future plan about the environmental protection have constitute in necessary law. मतलब आपको मालूम है ये environmental मैनेजमेंट के लिए ना एक लॉज होना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लोग किधर भी कचरा डालते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में आ जाएगा और पुलिस उसको 2 जन को उठा के लेके जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाता है, समझ में आता है कि बाबा हमें अभी कचरा नहीं फेंकना चाहिए. मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हो सकता है. नाउ ऑल ऑफ यू द रिमेनिंग पार्ट वी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, now all of you read the lesson and write the hard words from that lesson. Thank you.